Hello, dear friends. Welcome back to the channel of Accreditations and Nursing Educations. Today, we are going to start with the research topics and this research unit, which is placed in your seventh semester. And in that one, we are going to deal with our first unit today, that is on research and research process. So in this unit, basically, we are going to mainly see about the basic terminologies. So the outline of the presentation would be introduction to the basic terminologies, its learning outcomes, exercise, and the references. So if I go back to the introduction of the research, the word research is basically originated from a French word called as rechercher, which means to search again and again, searching again and again. That is a research word was being emerged from the French word, that is the researcher. So what does that mean? मतलब इसका मतलब क्या है? It is nothing but we are finding again and again. So it implies that searching for something, and the implicit assumes that the earlier search was not exhaustive or complete, in the sense that there is a still scope for improvement. माने क्या है कि ये सर्च पहले भी हो चुका है, पर इतना नहीं हो चुका है ताकि वो कंप्लीट भी नहीं है, पर फिर भी उसमें हमें कुछ स्कोप है. सो इसको इसको हम कहते हैं रिसर्च. So there are many terminologies or many different definitions have been given for the research. So some of the books define it as it is a scientific and a systematic search for pertinent information on a specific topic or an area. कुछ बुक्स यही बोलते हैं कि है ना, रिसर्च क्या है, ये एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक सर्च है. दैट इज सिस्टमेटिक मतलब एक स्टेप बाय स्टेप सर्च है. यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, हम कोई इंफॉर्मेशन या कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक और एरिया के बारे में हम देख रहे हैं. सो दूसरी शब्दों में कहने के लिए इट इज नथिंग बट एक इन्वेस्टिगेशन है या इंक्वायरी है. मतलब साइंटिफिक एंड सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी किस लिए? टू सॉल्व द प्रॉब्लम और टू सॉल्व आवर क्वायरीज या टू फाइंड द आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस. So in fact, research is an art and it is a investigation. That is it is a scientific investigation. So even in different dictionary meaning also, if you find you will see that a careful investigation or an inquiry, especially through the search of new facts in any branch of knowledge. So ये एक dictionary meaning है जो English dictionary है. Then a person named Redman and Mori, they also defined research as it is a systemized, मतलब एक proper systematic मतलब step by step process है और उसमें ऐसे ही करना है बोल के systematic way में है जिससे हमें कुछ न्यू गेन नॉलेज हो रहा है. एंड दैट न्यू गेन नॉलेज जो हो रहा है जिसको हम कहते हैं रिसर्च. सो सम पीपल कंसिडर रिसर्च एज अ मूवमेंट और अ मूवमेंट फ्रॉम नोन टू अननोन. कुछ लोग यही कहते हैं मतलब नोन से लेके अननोन तक जो जा रहे हैं उसको भी हम लोग रिसर्च कहते हैं. So there are different terminologies given to the research. But over in all, research का मतलब यही है, ये एक systemic scientific investigation या inquiry है कोई भी एक प्रॉब्लम के लिए या कोई भी एक टॉपिक जो प्रॉब्लमेटिक टॉपिक होगा या उसके लिए, ताकि हम उसके लिए आंसर ढूंढ पाए. So the objective of this particular lecture will be the student will be enabled to develop the understanding and implement the various research terms also. So we will be going to see the basic terminologies in the research also. Okay. So now how do we define? So there are certain definitions, I mean to say, मतलब ये हमारी रिसर्च में कंप्लीटली आते ही जाते हैं. ये एक शब्द रहते हैं जिसको हम कहते हैं टर्मिनोलॉजीज. ये रिपीटेडली हम इस्तेमाल करेंगे अपनी की कंप्लीट रिसर्च की प्रोसेस में, मतलब रिसर्च की चैप्टर्स में. तो एक शब्द आता है, उसका नाम है कॉन्सेप्ट. सो व्हाट इज कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? ये एक आइडिया है. मतलब कोई भी एक नया एक हमारे मन में एक आइडिया आया तो उसको हम क्या कह रहे हैं? दैट इज द कॉन्सेप्ट. अ जनरल आइडिया है, मतलब कंप्लीट नहीं कह रहे हैं. फॉर एनी बिहेवियर और अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप और ए नेशन. नाउ इसको हम उदाहरण के तौर पे भी हम आगे चल के समझ लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अ वर्ड, अ पिक्चर और अ मेंटल आइडिया ऑफ एन phenomenon. Now example is what? Pain,
सो पेन अनेकों प्रकार का डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन हो सकता है, या पेशेंट केयर में, पेशेंट केयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स केयर हम दे रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट हम हमारे माइंड में ला रहे हैं। जैसे अभी पेन है, पेन को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं? पेन को हम दवाई लेने से भी कम हो सकता है, या कोई अल्टरनेटिव थेरेपी हम ले रहे हैं। अल्टरनेटिव थेरेपी इन द सेंस गर्म पानी से हम सिकाई करेंगे, या हम हॉट वाटर बाथ लेंगे, या हम मसाज थेरेपी करेंगे, या हम इवन म्यूजिक थेरेपी के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो पेन पेन को हम अलग अलग डिफरेंट तरीके से में हम रख सकते हैं। दैट इज सर्चिंग अगेन एंड अगेन बोल रहे थे, पेन को कम करने के लिए अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं, दैट बिकम्स अवर न्यू सर्च। सो वैसे कोई एक कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारे माइंड में जब आता है, या कोई एक आइडिएशन आता है, उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट। नाउ हाउ विल वी डिफाइन द वर्ड कंस्ट्रक्ट? A concept specified in such a way that is observable in the real world in order to facilitate testing of the idea. So इसको again let us simplify it more. मतलब जो अभी हमने अभी बैक में हमने कॉन्सेप्ट देखा, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जर्वेबल वे में, मतलब हम उसको इस तरीके से रख रहे हैं ताकि वो ऑब्जर्वेबल वे में रहे। हम उस जो हमने सोचा है जो कॉन्सेप्ट, उसको हम टेस्ट कर पाए। अब पेन है, तो हमने पेन का एक उदाहरण लिया था। पेन हम मतलब कितना पेन हो रहा है, हम पेन की स्केल पे हम उसको माप सकते हैं, बट उसको कम करने का जो तरीका है हमने डिफरेंट यूज किया। कोई म्यूजिक थेरेपी है, कोई मसाज थेरेपी है, कोई हॉट वाटर बात है, ऐसे हमने किया। तो वो यूज करने के बाद क्या डिफरेंस आ रहा है, माने मीन्स व्हाट इज द चेंज इन दैट वन, सो दैट व्हाट वी कॉल इट एज व्हाट कंस्ट्रक्ट। Okay, so now for the example, if I see with example in this, like the real word has many different meanings in gynecology, in surgery, and the management also. So अलग अलग definitions में भी अलग अलग इसमें हमारा चेंज होता जा सकता है। देखो पोजीशन है, अब पोजीशन क्या है, अब हम पोजीशन फंडामेंटल्स के देखेंगे तो पोजीशन का मीनिंग एक अलग हो सकता है, बट गायनेकोलॉजी में हम देखेंगे वो अलग है, सर्जरी में देखेंगे हम कुछ उसका मतलब उसकी क्या हो जाती है, उसकी मीनिंग्स अलग अलग हो सकता है, और उसका मैनेजमेंट भी अलग अलग हो सकता है। नाउ अदरवाइज अगेन इफ यू टेक द example, now again let us take an example of a concept. Okay, so what concept we will see? अभी जैसे अपन यूज करेंगे कि है ना, कोरोना टाइम में हम लोगों को है ना एक आयुष्मान का एक ऐप आया था। ओके, सो ये ऐप जो बनाना है ये बन गया हमारा कॉन्सेप्ट, और वो जो चलाने का जो था उसको मतलब एग्जीक्यूट कराने का था वो बन गया हमारा कंस्ट्रक्ट। So this is an example, or we can say the relationship between what? The concept and the construct. So the weight, and these are the different of the things what we are calling by weighing machine is there, that becomes our concept. And how to weigh this one, the weight can be taken even through the electronic scale, or even the weight can be done in the morning or after the breakfast without the clothes. So these are certain things which we can identify. How we can manage the weight, that becomes our constructor. So now how you can define the variable? So now what is variable? Variables are nothing but those are the qualities or the properties of any or every phenomena. कोई भी एक phenomena का property जो है उसको हम कहते हैं variable in a very simple ways. So a concept that is observable, measurable, and has a dimension which can be varied is called as what? वेरिएबल. सो वेरिएबल में क्या है, हम उसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और उसका हमने डायमेंशन भी उसमें वेरी हो सकता है, उसको हम कह सकते हैं वेरिएबल. लाइक एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आर हैविंग मोर देन वन वैल्यू. सो देयर इज एन एग्जांपल दैट टेम्परेचर इज अ वेरिएबल. क्यों टेम्परेचर वेरिएबल है? क्योंकि हम उसको देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हम उसको मेजर भी कर पा रहे हैं, एंड वो वेरी होता है हाई और low. So that is what we call it as what? Variable. So variable may be, again we are having two different type of variable. One is called the dependent variable, another one is called as independent variable. So now what is independent variable? Independent variable, there is nothing that is not, it is not changing, or there is no any change, that is
For example, if you take here the cause or the variable that is thought to influence the dependent variable, any cause which is making the change on the dependent variable, we call it as what? Independent variable. So especially experimental research में the variable is manipulated by the researcher. Now for example, knowledge है, practice है, ये सारे क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल से. तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करते हैं. नो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज को लाता है, दैट इज इफेक्ट दिखाता है. लाइक if I say it is giving the effect, that is the response where the influence which is been influenced by the independent variable. Dependent variable हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारा इफेक्ट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारा कॉज है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको मतलब उसका ऊपर इफेक्ट दिखाता है. स्पेशली लाइक फॉर एग्जांपल हेल्थ एजुकेशन है, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा, हम कोई एक नॉलेज को हम देख रहे हैं, तो हम नॉलेज यदि हमारा नॉलेज कम है तो हम उसको इफेक्ट कैसे करा सकते हैं? वी कैन चेंज दैट इफेक्ट थ्रू द हेल्थ एजुकेशन. स्पेशली जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में अधिकतर यूज किए जाते हैं. नाउ व्हाट इज द कंसेप्चुअल डेफिनेशन? So the definition or a description of the study variables that are drawn from a theoretical or a conceptual framework. ये हमारा रिसर्च जब हम लिखते रहते हैं या थीसिस वगैरह हम लिखते रहते हैं तो हमें हमारा ऑपरेशनल डेफिनेशंस का हमें लिखना पड़ता है. जैसे अभी वेरिएबल्स क्या रहते हैं? ये एक थेरोटिकल या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है. मतलब हमारे रिसर्च स्टडी में जो भी हम लिख रहे हैं उसका हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, उसका कंसेप्ट क्या है. नाउ लेट अस टेक अगेन एन एग्जांपल ऑफ अ knowledge of the hand washing. Okay, so what is the meaning of the knowledge in your particular research study? What is the meaning of the hand washing in your research study? उसका concept क्या है, उसका theoretical framework क्या है आपकी research study में, उसको हम कहते हैं conceptual definition. Then the other thing is what the operational definition. The definition or the description of a study variable that specifies how it will be observed और मेजर्ड इन द स्टडी. अब एक कॉन्सेप्चुअल वाला हो गया और दूसरा वाला हैंड वॉशिंग का हमने एग्जांपल लिया था. वही आपकी यहाँ पे एग्जैक्टली हम उसमें क्या डिफाइन कर रहे हैं. इन योर स्टडी व्हाट डज द नॉलेज रेफर्स टू, इन योर स्टडी व्हाट डज द हैंड वॉशिंग रेफर्स टू. So the way which the researcher clarifies or defines the variables which are under the investigation, which are being observed or measured, which you call it as what? The operational definition. Next the word comes the assumption. So now what is assumption? जैसे assumption हम कह रहे हैं, assumption मतलब एक तरह का हम क्या कर रहे हैं? अंदाजा लगा रहे हैं. तो assumption is nothing but it is a statement or a that is a statement of the principle whose correctness has not been proven, but it has taken for granted on the basis of a लॉजिकल रीजनिंग. सो अनेक मतलब बहुत बार हम लोग कहते हैं कि है ना ऐसे लग रहा है, ऐसे हो सकता है बोल के, भले ही हम उसको क्या कर रहे हैं मतलब हमारे अनुभव के माध्यम पे या हमारा एक्सपीरियंस के माध्यम के थ्रू हम कह सकते हैं कि है ना ऐसे भी वो हो सकता है. मतलब उसका करेक्टनेस हमें पता नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा, बट एक अंदाजा लगा रहे हैं कि मतलब एक रीजनिंग के थ्रू हम कह रहे हैं कि वो है, तो उसको हम कहते हैं assumption. फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इज अ प्रायोरिटी फॉर ऑल पीपल. हम सब लोग कहेंगे कि सभी लोगों को हेल्थ प्रायोरिटी बोल के, ये मेरे assumption है. बिकॉज आई एम थिंकिंग मेरे को ऐसे लगता है कि है ना हेल्थ सबको इंपॉर्टेंस है, सब लोग हेल्थ पे इंपॉर्टेंस देते हैं, बट इट मे become true or it may become wrong also when I do some research on this one. So that is what we call it as what? Assumption. So the next definition which comes in this one is the hypothesis. So hypotheses are nothing but they are the small statements or it is a statement which is protecting the accepted relation between the वेरिएबल्स. मतलब दो वेरिएबल्स जो हमने अभी पीछे देखा था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है ये बताता है हमारा hypothesis. So hypothesis lead to empirical studies that are seeking to confirm or disconfirm these predictions. So empirical studies में हमें पता चल जाता है कि है ना हम लोगों वेदर क्या हमारा इन दोनों के बीच में संबंध एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है ना. उदाहरण के तौर पे यदि अपन लेके चलेंगे स्मोकिंग है और लंग कैंसर है, तो स्मोकिंग और लंग कैंसर दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं. एक
डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है क्या? ओके, सो है तो किस टाइप का रिलेशन से? सो दैट व्हाट मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। सो उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। ओके, सो नेक्स्ट इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जब अपन देखते रहेंगे, इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस रहता है। वो भी हम अपन वहां पे देख लेंगे, जहां पे क्या होता है, मतलब अभी दूसरे एक एग्जांपल में कह रही हूँ हाइपोथेसिस के लिए। एक इम्यूनिटी है और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है। सो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इम्यूनिटी हो गया और डिपेंडेंट वेरिएबल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो गया। अब जितना इम्यूनिटी कम होगा उतना इन्फेक्शन का रेट हाई रह सकता है। ये एक मेरा अजम्पशन है या ये एक मेरी विचार है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, मतलब इसको हम संबंध में दिखा रहे हैं कि इम्यूनिटी और हाई रिस्क फॉर द इन्फेक्शन, ये दोनों में संबंध है। यदि इम्यूनिटी गिरेगा तो इन्फेक्शन होगा, यदि इम्यूनिटी अच्छा रहेगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा। सो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस कहेंगे। सो हाइपोथेसिस में भी दो प्रकार के हाइपोथेसिस रहते हैं। एक मतलब और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस है, बट बेसिकली हम रिसर्च में दो यूज करते हैं, दैट इज वन इज द नल हाइपोथेसिस, अनदर वन इज द रिसर्च हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम H0 बाय नोट करते हैं और रिसर्च हाइपोथेसिस को हम H1 से नोट करते हैं। सो नो नल हाइपोथेसिस क्या है? ये एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है। ये क्या प्रेडिक्ट करता है? there is no relationship between the variables and that hypothesis is subjected to statistical analysis। मीन्स अभी जैसे अभी मैंने उदाहरण लिया था इम्यूनिटी और हाई रिस्क इन्फेक्शन का, तो इन इम्यूनिटी और इन्फेक्शन के बीच में कोई संबंध ही नहीं, तो नहीं बोलेंगे तो वो नल हाइपोथेसिस बनेगा। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस क्या कहता है, मतलब दोनों के बीच में संबंध है, दैट इज देयर इज the hypothesis to the statistical name hypothesis. It predicts the researcher's actual acceptation about the outcome of the study, and that is also called as scientific substantive and theoretical hypothesis। मतलब नल में नहीं होता है और रिसर्च या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में दोनों के बीच में संबंध होता है। इसको हम H1 से भी डिनोट करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू डिफाइन डाटा। तो ये शब्द तो हमारे लिए बार बार आता रहेगा, डाटा डाटा। डाटा क्या है? डाटा ये एक इंफॉर्मेशन है, मतलब एक छोटी इंफॉर्मेशन से जो हम अपने सैंपल से या हमारे स्टडी के माध्यम के थ्रू हम कलेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं डाटा। इट इज नथिंग बट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड एज दे पर्टेन टू द स्टडी। नाउ लिमिटेशंस। लिमिटेशंस इज नथिंग बट ये रिसर्च का हमारा एक वीकनेस है। जैसे कभी कभी क्या हो जाता है, हमारा रिसर्च हम लोग कुछ कंस्ट्रेंट होने का चांसेस रहता है। फॉर एग्जाम्पल अब कहीं कहीं एजुकेशन एक फैक्टर हो सकता है, या हम हॉस्पिटल स्टडीज में कर रहे हैं, हम नर्सेस के ऊपर वगैरह कर रहे हैं। हो सकता है उस जब आप डाटा कलेक्शन करने गए हैं उस समय वहां पे नर्सेस उपलब्धता नहीं हो, या कोई अन्य स्टेट में कर रहे हैं, लैंग्वेज बैरियर हो। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या ये जिसको हम कह सकते हैं weakness of the research. So the restrictions is nothing but there is a study limit and the credibility and also the generability in the research findings. So यहाँ पे generalization हम नहीं कर सकते हैं। Next comes the definition of what is pilot study. Pilot study क्या है? ये एक small scale trial है and that is specifically done on the preparation of the major research. Major research मतलब main research करने से पहले एक छोटा सा सैंपल पे हम क्या कर रहे हैं, वही रिसर्च स्टडी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं पायलट स्टडी। और अभी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में भी हम क्या करेंगे, और फिर हम दोबारा टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे। स्टे अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।